Good evening everyone. I am Gyasuddin, Prelude Public School, Dayalbagh, Agra. Today I will teach you a basic knowledge of some nutrients of body development. The first is essential nutrients. Essential nutrients are compounds that the body can't make in sufficient quantity according to the World Health Organization. These nutrients must come from food and they are vital for disease prevention, growth and good health. While there are many essential nutrients, they can be broken into two categories: macronutrient and micronutrient. Macronutrients are eaten in large amount and include the primary building blocks of your diet: protein, carbohydrate and fat, which provide your body with energy. Vitamins and minerals are micronutrients and small doses go a long way. There are six main groups of essential micronutrients and macronutrients. The first is protein. Protein, like example, eggs. Eggs protein is having its moment, and not just in the workout community, but all of the hype is for a good reason. Protein is essential for good health. Protein provides the building blocks of the body, and not just for muscle. Every cell from a body, bone to skin or hair, contains protein. I starting 16% of the average person's body weight is from protein. Protein used primarily for growth, health and body maintenance. All of your hormones, antibodies and other important substances are composed of protein. Protein is not used to fuel the body unless necessary. Protein are made of different amino acids. While the body can create some amino acids on its own, there are many essential amino acids that can only come from food. You need a variety of amino acids for your body to function properly. The good news is that you don't need to eat all of the amino acid at once. Your body can create complete proteins from the foods you eat throughout the day. Healthy sources: while meat, fish and eggs are good sources of essential amino acids, you can also get protein from plant sources like beans, soy, nuts and some grains. Exactly how much protein you need daily depends on a variety of factors, including how active you are and your age. Despite the growing popularity of high proteins diet, there have not been enough studies to prove that they are healthier or can influence weight loss, according to the Mayo Clinic. The second is carbohydrate. It means vegetable. Don't let the low carb proposal fool you. Carbohydrates are necessary for a healthy body. Carbs fuel your body, especially your central nervous system and brain, and protect against disease, according to the Mayo Clinic. Carbohydrates should make up 45 to 65% of your total daily calories, according to the dietary guidelines for Americans. Healthy sources: before you reach for the white bread or pasta, keep in mind that the type of carb you eat matters. Some carbs are healthier than others. Opponent for whole grains, beans and fiber rich vegetables and fruit instead of refined grains and products with added sugar. The third is fats. Fats often get bad, but recent research has shown the healthy fats are an important part of a healthy diet. According to Harvard Medical School, fat supports many of your body functions such as vitamins and mineral absorption, blood clotting, building cells and muscles development.
or movement. Yes, fat is high in calories, but those calories are an important energy source for your body. The dietary guidelines for Americans recommended that 20 to 35% of your daily calories come from fat, but the World Health Organization suggests keeping it under 30% of your calories. Including healthy fats in your diet can help you balance your food sugar, decrease your risk of your heart type 2 diabetes, and improve your brain function. They are also powerful anti-inflammatory, and they may lower your risk to arthritis, cancer, and Alzheimer's disease. Healthy sources. The most famous unsalted fats are omega 3 and omega 6 fatty acids. Unsaturated fats are important for your body as they provide important to your body as they provide essential fatty acid your body can't make. You can find these healthy fats in nuts, seeds, fish, vegetable oils like olive, avocado, and flaxseed. Coconut oil provides plant fats in the form of the medium chain triglycerides, which impart health benefits like master unitization by organs and fuel at the upwell control. The fourth is vitamins. Vitamins are vital for warding off disease and staying healthy. The body needs micronutrients to support in function. Body needs to function. The 13 essential vitamins that the body needs properly included vitamin A, vitamin C, B6 and D. Each vitamin plays an important role in the body, and then getting enough of them cause health problem and disease. Many Americans don't get enough of many essential vitamins. Vitamins are essential for healthy vision, skin and bones. Vitamins may lower the risk of lung, prostate, cancer, like vitamin C, the most immune system and help the body heal. Healthy sources. If you eat a varied, well balanced diet full of vegetable and fruits and have a normal and healthy functioning digestive tract, you likely don't need to take vitamin supplements. Number 5 is minerals. Minerals like medicine. Much the vitamins, minerals help support the body. They can essential for many body function, included building stones, bones and teeth, regulating your metabolism and staying properly hydrated. Some of the most common minerals are calcium, iron and zinc. In addition to strengthening bones, calcium helps us enable signal transmission, maintaining healthy blood pressure and muscle contraction, and relaxation. Iron support your red blood cells and hormones creation, while zinc boosts your immune system and wound healing. And the last one is water. Water is very important for us. You all know that you can go for weeks without food, but you can last more than a few days without water. Water is absolutely crucial for every system in our body. It's also the main thing. You are made of about 62% of your body weight is water. Water improves your brain function and mood. It acts as shock absorber and a lubricant in the body. It also helps flush out toxins, carry nutrients to cells, hydrate the body and prevent constipation. Even mild dehydration can make you feel tired and impair your concentration and physical performance. Healthy sources. You don't have to chug water to stay hydrated. Fruits, vegetables and also be a great source. Munch on some spinach or watermelon to stay hydrated. The best way to know if you proper hydrated is the color of volume of a urine.
If your urine is not frequent and pale, yellow, nearly clear, you need more water. Takeaway: eating a varied diet full of fruits, vegetables, healthy proteins and fats, and whole grains is the best way to diet enough of these 6 essential nutrients plus important category of phytonutrients. The benefits: chemicals in colorful plants that prevent disease. These micronutrients and micron the vital of your body to function normally and stay healthy. So please everyone, you have to stay home, stay safe in this very crucial situation. Thank you. दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को एनिमेशन के थ्रू समझेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का भी सेट करेंगे। ये टॉपिक केवल हमारे एग्जाम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एसएससी कैंपस को और बेल आइकन दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है और उपयोगिता के आधार पर इसको हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे ऑर्गेनिज्म मतलब जीव अपने सर्वाइव, ग्रो और रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, या फिर हम यूं बोलें कि वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं वे पोषक पदार्थ मतलब न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स टिश्यू तथा सेल का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ उसकी मरम्मत भी करते हैं। न्यूट्रिएंट्स ही हमारे शरीर को हीट और एनर्जी प्रदान करते हैं और यही एनर्जी शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। यूज के आधार पर ये न्यूट्रिएंट्स 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं ऊर्जा उत्पादक की। ऊर्जा उत्पादक जैसे वर्ड से ही आपको मालूम चल रहा है कि जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जैसे कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ की। ठीक है, तो इसमें वे पदार्थ हैं जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं जैसे कि प्रोटीन। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपापचय नियंत्रक मतलब ये होता है मेटाबॉलिज्म कंट्रोलर की। वे पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं जैसे कि विटामिन हो गया, लवण हो गया और ये जल हो गया, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुवांशिकी पदार्थ जिसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि जो हमारे जीन्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। मतलब वे पोषक पदार्थ जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम समझते हैं कि शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए कौन कौन से पोषक पदार्थ मतलब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है विटामिन्स, पांचवा है न्यूक्लिक एसिड, छठा है मिनरल्स और सातवां है वाटर। मतलब इतने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको एक एक करके टोटल डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:1 की रेशियो से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 70% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से हो जाती है। तो ये पदार्थ कौन कौन से हैं? तो ये पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जब 1 ग्राम ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 4.2 केल्विन ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के मेनली 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं मोनोसैकेराइड, सेकंड हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स और थर्ड हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। फर्स्ट की हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। तो देखिए मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल अवस्था होती है। जैसे ग्लूकोज हो गया,
ग्लैक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ट्राइयोज हो गया इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसेक्राइड की। तो देखिए ये जो डाइसेक्राइड होता है, सेम या डिफरेंट मोनोसेक्राइड के दो एटम के कॉम्बिनेशन से डाइसेक्राइड बनता है, जैसे कि माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की। कई एटम के मिलने से लंबी चेन वाले अघुलनशील पॉलीसेक्राइड का निर्माण होता है। यह ऑर्थोपोडो के बाह्य कंकाल एवं सेलुलोज में पाया जाता है। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, काइटिन हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। शरीर में भोजन संचय मतलब फूड स्टोरेज की तरह कार्य करना। विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना तथा जंतुओं के बाह्य स्केलेटन का निर्माण करना। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख सोर्स, मतलब प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फर्स्ट है गेहूं। गेहूं से हमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल है, मक्का है, बाजरा है, आलू है, शकरकंद है, सलजम है इत्यादि बहुत सारे ऐसे इसके सोर्स है जहां पे कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमने कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर लिया है। बाकी के जो 6 टाइप है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। हमने सबका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सबका लिंक दे रखा है, जो काफी अच्छे तरीके से हमने बताया है। तो एक एक करके सारे वीडियो आप देख लें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे एक क्वेश्चन सेट लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन से पोषक पदार्थ हैं जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब न्यूक्लिक अम्ल। तो दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 3 कथन दिया हुआ है, तीनों को हमको पढ़ना है और नीचे में जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसको चूज करना है, मुझे बताना है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्कुल सही। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पर ये लास्ट वाला जो है वो सही नहीं होगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा, मतलब 1 और 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, मतलब मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। ठीक है ना। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरीके से रुक जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर में किसकी कमी होने से शरीर का जो वजन है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से शरीर का जो वजन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और कार्य करने की क्षमता भी घट जाती है। एक चीज और आपको बता दें, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर के वजन में वृद्धि होती है तथा मोटापे से संबंधित कई सारे रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि कार्बोहाइड्रेट बन जाए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:1 के अनुपात में अगर हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इनमें से न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करने का काम कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो
न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से टिश्यू तथा सेल का निर्माण करने का काम कौन करता है? तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। मतलब प्रोटीन जो होता है वो टिश्यू तथा सेल का निर्माण करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ग्लूकोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं? ठीक है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मोनोसैकेराइड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल अवस्था होती है, और उसमें मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के बारे में। ठीक है ना, ग्लूकोज क्या है उसका एक उदाहरण है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन टॉपिक पे हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे फेसबुक पेज पे विजिट